Hello everyone, hope you all are fine. So today we are going to study some features of genetic code. We are already aware about the term genetic code, that it exists in triplet form. That means whatever sequence are present on messenger RNA, that is we are calling it codons, and codons हमेशा triplet form में होंगे. That means 3 nitrogen bases will code for 1 amino acid, or you can also say that 3 ribonucleotides code for 1 amino acid. So in total we have 64 codons, but the number of amino acid is only 20. How to maintain the balance we'll see later. So we have 61 codons and it will code for 20 different amino acids. What about rest 3 codons? They are considered as nonsense codon or stop codons. And I think you remember the name of the nonsense codon, that is UAA, UAG and UGA. Now let me remind you once again about genetic code. See, you just remember the sequence UCAG. These are 4 nitrogen base UCAG. It will form the first position, and again for second position again you have to remember the sequence UCAG, and for third position again UCAG, but यहाँ पर 4 के आपके नंबर में है और 4 टाइम्स है, राइट. तो अगर आपको जेनेटिक कोड बनाना है तो फर्स्ट पोजीशन यू विल टेक U, फ्रॉम सेकेंड पोजीशन अगेन U, एंड फ्रॉम थर्ड पोजीशन U. सो इट विल फॉर्म U. तो ये ट्रिपलेट फॉर्म में ये कोडोन बन गए, एंड दिस कोड्स फॉर 1 एमिनो एसिड, दैट इज़ फिनाइल एलानिन. अब हमारे पास वी हैव 20 डिफरेंट एमिनो एसिड्स, बट द नंबर ऑफ कोडोन्स आर 64. So to maintain balance, you can see here phenylalanine is only one single amino acid, and इसके लिए आपके 2 कोडोन्स हैं UUU and UUC. You can see here, and similarly you can see here also leucine. This is another amino acid, और ये एक सिंगल एमिनो एसिड है, लेकिन इसके कितने कोडोन्स हैं? You can see CUU, CUC, CUA एंड CUG. सो इस वजह से ये 64 जो कोडोन्स है वो बैलेंस हुए एमिनो एसिड से, राइट. यू हैव टू रिमेंबर वन स्टार्ट कोडोन, दैट इज़ AUG, which codes for methionine, and it has dual function, that it is also considered as start codon or initiator codon. AUG के वजह से ट्रांसलेशन स्टार्ट होंगे, और ट्रांसलेशन स्टॉप किसके वजह से होंगे? कौन से 3 कोडोन से, विच आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज नॉनसेंस कोडोन. यू कैन सी हियर UAA, UAG and UGA, right? So the first feature of amino acid is genetic code always exists in triplet form, where 61 codes for 20 different amino acids and 3 codons do not code for any amino acid. That means they are considered as nonsense codon or stop codons. Second is there is no punctuation. ठीक है, there is no punctuation, that means no comma, that is read in a contiguous fashion. contiguous fashion means ये continuous fashion में ये read किए जाते हैं and non overlapping होते हैं. Now what do you mean by this? Suppose ये mRNA पर sequence है, these are the sequence which are present on mRNA. ठीक है, मैंने एक सिंपल सा sequence यहाँ लिख दिया है mRNA में 5 प्राइम to 3 प्राइम. तो CCC, this is considered as one codon. AAG, this is another codon. CUA, this is another codon. ACA, another codon. तो यहाँ ट्रिपलेट फॉर्म में कोडोन है और ये कंटिन्यूअस फैशन में पढ़े जाते हैं, रीड किए जाते. डैट मीन्स कि 1 कोडोन ख़त्म होने के बाद कॉमा या फुल स्टॉप कुछ भी नहीं होगा, राइट. CCC, इसके बाद कॉमा नहीं लगाते, ये कंटिन्यूअस होते हैं. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर फर्स्ट कोडोन CCC है तो सेकेंड कोडोन साइमल्टेनियसली यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे AAG. जैसे G ख़त्म होगा थर्ड कोडोन विल स्टार्ट. तो ये एक कंटिन्यूअस फैशन में पढ़े जाते हैं. देयर विल बी नो पंक्चुएशन, दैट मीन्स इट इज़ कॉमालेस. एंड नॉन ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? सपोज इट इज़ CCC, ठीक है, तो ये 1 कोडोन है. अगर सेकेंड कोडोन है तो आप अगेन यू कैनॉट, यहाँ से आप CAA नहीं कर सकते. सेकेंड कोडोन ऑलवेज विल बी AAG. तो
तो यहाँ से आप अगर CAA को कर लोगे, जो फर्स्ट कोडोन में जो C इस्तेमाल हुए थे, एंड अगेन फॉर फॉर्मिंग सेकेंड कोडोन अगेन यू आर कंसिडरिंग द सेम C, तो ये एक ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो ओवरलैपिंग भी कभी नहीं होती जेनेटिक कोड में। तो फर्स्ट आपके ट्रिपलेट फॉर्म में वन कोडोन, अगेन ट्रिपलेट फॉर्म में अनदर कोडोन, एंड सो ऑन, राइट। नाउ genetic code shows degeneracy. What do you mean by degeneracy? You can see here more than one codons codes for one amino acid. जैसे अभी अभी मैंने आपको बताए थे CUU, CUC and CUA, CUG. These are 4 different codons and it codes for one single amino acid. So this shows degeneracy और इसी की वजह से आपके 64 amino acids का बैलेंस मेंटेन हुआ था। 64 कोडोन्स का 20 एमिनो एसिड्स के लिए बैलेंस हुए थे, राइट। नाउ अनदर पॉइंट इज अनएम्बिगुअस। जेनेटिक कोड्स आर अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक। अब ये देखो डीजेनरेसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, फॉर मोर देन वन कोडोन्स कोड फॉर वन एमिनो एसिड, दैट इज डीजेनरेसी। लेकिन यहाँ पर आप देखो ये जो वन कोडोन है CUU, ये इट विल ऑलवेज, इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, इट विल कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड दैट इज़ AAA। CUU किसी और एमिनो एसिड का कोडोन नहीं बनेंगे, ये सिर्फ ल्यूसाइन को कोड करेंगे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हो CUC, तो ये एक वन कोडोन है, ये भी सिर्फ कोड करेगा एक ही एमिनो एसिड को, ल्यूसाइन। ये चेंज नहीं करेगा, या ये किसी ग्लाइसिन को या एस्पार्टिक एसिड या ये सब को किसी को कोड नहीं करेगा। ये भी हाईली स्पेसिफिक है, इट विल कोड फॉर वन कोडोन विल कोड फॉर ओनली वन पर्टिकुलर एमिनो एसिड। So you can see here one codon codes for only one particular amino acid, that is called unambiguous and specific. Now universal genetic codes are considered universal. How? क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक हैं, जिस बैक्टीरिया में जो पर्टिकुलर कोडोन जो एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं, आप ये कोडोन बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बींग्स तक सेम पर्टिकुलर कोडोन विल कोड फॉर द सेम एमिनो एसिड। जैसे फॉर एग्जांपल UUC, बैक्टीरिया में भी UUC फिनाइल एलानिन को कोड करते हैं। तो अगर ह्यूमन बींग्स में भी लोगे तो UUC विल कोड फॉर फिनाइल एलानिन। एंड वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू, UUU, इट ऑल्सो कोड्स फॉर फिनाइल एलानिन। तो बैक्टीरिया में भी वो फिनाइल एलानिन को कोड करेंगे, तो ह्यूमन बींग्स में भी ये सेम एमिनो एसिड को कोड करेंगे। तो दे आर जनरली यूनिवर्सल विथ फ्यू एक्सेप्शंस ऑल्सो। एक्सेप्शन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद भी अपने DNA प्रेजेंट होते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट दिस इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। एंड इन फ्यू प्रोटोजोन्स, ये फ्यू प्रोटोजोन्स और माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शन है, अदरवाइज जो जेनेटिक कोड है इट इज़ यूनिवर्सल। नाउ यू कैन सी हियर इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, UGA। जनरली आपने क्या देखा था कि UAG, UAA एंड UGA जनरली कोड्स फॉर स्टॉप कोडोन्स, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ये UGA जो है वो ट्रिप्टोफन एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। तो ये एक अलग हो गया, राइट। Now you can see here UAA, UAG, these are stop codons. Again AGA, AGG, तो इसके एमिनो एसिड्स है इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड ऑल। लेकिन यहाँ पर आप माइटोकॉन्ड्रिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो DNA है उसमें जो सीक्वेंसेस होंगे, उससे जो mRNA बनेंगे, उसमें ये जो जेनेटिक कोड होगा वो स्टॉप कोडोन को कोड कर रहे हैं, जबकि इसके तो अपने एमिनो एसिड्स हैं, राइट। नाउ आपने देखा जनरली मिथ्योनिन को कोड करने के लिए AUG होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में AUA विल कोड फॉर मिथ्योनिन। सिमिलरली प्रोटोजोन्स, व्हाट यू विल सी that UAA and UGA which are generally stop codons, but protozoans में ये जो कोड है वो ग्लूटामिक एसिड को कोड करते हैं, right? So these are exceptions, you remember this. Another, the last function, genetic code has dual function of what? किसका? AUG का। मैंने बताए थे AUGs
मिथ्योनिन एमिनो एसिड को भी कोड करते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग इज़ इट एक्ट्स एज ए स्टार्ट कोडोन और इनिशिएटर कोडोन, इसके वजह से ट्रांसलेशन स्टार्ट भी होगा। सो थैंक यू चिल्ड्रन।